Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 28 August 2021 and I am teaching you chapter number 8. Name of the chapter, Our Clothes. Okay, so let's do little recapitulation what we have done in the previous video. Student, in the previous video I explained you that our clothes protect us from heat, rain, cold, insects bites, and due to these clothes we look smart, stylish and beautiful. And even student, sometimes the clothes also help us to describe the job of a person. Okay, so these things we have already discussed in the previous video. After that, our clothes also tell us about in which profession we are. Okay, for example, your parents, maximum student, you all are belonging to army family. So army have by seeing the cloth, other people know that person belongs to a army. In the same manner, if you by seeing the dress, we can tell that person belongs to which job or which profession, that is a policeman. Okay, so by seeing the colors of the cloth also we tell in which type of profession the person is working. Okay, now next is the why see student according to the seasons. Is it clear? According to the seasons we wear different types of a clothes. ठीक है, according to season we wear different types of a clothes. For example, in summer season we wear light color clothes because light color clothes reflect the heat of the sun, and we wear loose fitting clothes so that the air enter inside our body, and especially we wear cotton clothes in summer season. And when we are talking about the winter, then in the winter we wear thick clothes, and these clothes are made of wool, fur, leather, okay, or you can say flannel. So woolen shirts you are able to see in the winter season. People wear flannel shirts in the winter season. And in the rainy season, when we are talking about the rainy season, so we wear a raincoat. So it is a waterproof. If you wear a raincoat, water does not enter inside the raincoat. And we wear gum boots. Okay, and these gum boots are made of a rubber. ठीक है, अगर आप लेदर के शूज पहनते हो बेटा रेनी सीजन में, तो लेदर जो होता है व्हेन इट कम इन टच विद द वाटर, तो लेदर क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब होने लगता है लेदर। लेकिन रबड़ पे वाटर का कोई वो नहीं होता है, इसलिए इन द रेनी सीजन हम लोग बेटा क्या है, गम बूट्स पहनते हैं, क्योंकि ये बूट्स किसके बने होते हैं, रबड़ के बने होते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट, after explaining you these things, which type of a clothes we wear, after that I start explaining you about the materials which are used to make these clothes. What type of the materials we use to make these types of a clothes? So natural things also, for example cotton clothes. So cotton, we having a cotton plant from which we get the cotton. Okay, so this from the cotton plant we make the cotton clothes, and there is a method how we directly cloth बनाने का भी मेथड है। उसको पहले क्या चेंज करते हैं, उससे थ्रेड्स बनाते हैं। ठीक है, और इन थ्रेड्स को आपस में क्रिस क्रॉस करके जोड़ के तब इस तरह स्लोली क्या बनते हैं, क्लोथ्स बनते हैं।
सो वुल है, कॉटन है, कॉटन वी गेट फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स, वुल वी गेट वुल फ्रॉम द शिप. Is it clear? So what are the wool? Wool is the ship here, or ships are found in which region? In the cold region. That is the reason they have lot of hairs on their body, because they are found in the cold region. Okay. Now after that, next is the silk cloth. So silk cloth, we make silk cloth with the silkworm. Okay, so they lay eggs, silkworm lay eggs on the mulberry leaves, जिसको शहतूत के पत्ते बोलते हैं, ठीक है, mulberry leaves. Okay, after that what happens? When the egg hatch, then larva come out and they feed on this mulberry leaves. वो इसी mulberry leaves पे feed करते हैं. Okay, वो continuous eat करते रहते हैं इन green leaves को, and they become fat. उनकी बॉडी की ग्रोथ हो जाती है. फिर आफ्टर सम टाइम क्या है, वो ईटिंग बंद कर देते हैं, ठीक है, और वो क्या अपने चारों तरफ फॉर्म करते हैं, कोकून फॉर्म करते हैं, ठीक है. इसी कोकून में जो लार्वा है वो अपने आप को क्लोज कर लेता है. आफ्टर सम टाइम द ओपनिंग ओपन्स एंड सिल्क फॉर्म कम आउट. लेकिन अब देखो बेटा, हम क्या करते हैं, इन कोकून्स को ओपन नहीं होने देते, ठीक है, इन कोकून्स को ओपन नहीं होने देते. वी पुट दिस कोकून्स इनटू द वार्म वाटर. हम इसे हॉट वाटर में डालते हैं, और जो कोकून वो लोग फॉर्म किए होते हैं वही क्या होते हैं, वही रेशे जो होते हैं, वही सिल्क होते हैं, ठीक है. सो इन दिस मैनर वी गेट द सिल्क, एंड सिल्क क्लोथ्स आर वेरी एक्सपेंसिव. देयर वेट इज वेरी लेस. सिल्क क्लोथ का वेट बहुत लेस होता है, और सिल्क क्लोथ क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, और दे आर शाइन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. इन द ओल्ड डेज यू सी द किंग एंड द क्वीन एंड देयर फैमिली मेंबर्स से wear which type of clothes? They wear silk clothes. In the old time, royal family peoples, जो राजा महाराजाओं के घर के लोग हुआ करते थे, वो किस टाइप के क्लोथ्स पहनते थे बेटा, सिल्क क्लोथ्स पहनते थे. और ये सिल्क क्लोथ्स सबसे पहले कहाँ बनना स्टार्ट हुए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये सिल्क क्लोथ्स सबसे पहले जो बनना स्टार्ट हुए वो चाइना में, ठीक है. सिल्क सबसे पहले इसकी कहाँ पे खोज हुई थी, चाइना में हुआ था, ठीक है. उसके बाद देखो नेक्स्ट कैटेगरी अब करते हैं हम लोग डिस्कस, दैट इज द नायलॉन. ओके, नायलॉन. अब देखो क्रूड ऑयल है, जैसे पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बन रहा है, ठीक है. सो इसी से हम लोग क्या बना रहे हैं, क्लोथ्स बना रहे हैं, नायलॉन के और रेयन के क्लोथ्स. तो ये क्या ऐसा है बेटा, ये मैन मेड सिंथेटिक है. इस क्लोथ्स को हमने बनाया, ये क्या है, मैन मेड सिंथेटिक, ठीक है, ये नेचुरल नहीं है. दिस इज नॉट ए नेचुरल. जैसे कॉटन है, कॉटन प्लांट से मिला, सिल्क सिल्क वॉर्म से हमें मिला, ठीक है. वुल जो है ये सब नेचुरल है, ये हेयर्स हैं शिप के, तो हमें शिप से मिल गए, ठीक है. लेकिन ये जो अब हम लोग ने नायलॉन बनाया, नायलॉन और रेयन, दिस इज अ मैन मेड सिंथेटिक. ये क्या है, मैन मेड सिंथेटिक है, और इसे हम लोग क्रूड ऑयल से तैयार करते हैं, ठीक है. नायलॉन, नायलॉन क्या है, मैन हैज लर्न टू मेक synthetic fiber, from crude oil, and what was the name of the fabric which is made from the crude oil, ठीक है. क्रूड ऑयल से जो फैब्रिक बनती है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नायलॉन और रेयन, ठीक है. क्रूड ऑयल से जो फैब्रिक बनती है नायलॉन होती है, या तो रेयन बोलते हैं इसको. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेनेवर वी
देखो हमेशा आता है कि हम लोग नायलॉन के क्लोथ्स, अब तुम लोग को समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई वी शुड नॉट वेयर नायलॉन क्लॉथ्स वाइल कुकिंग इन द किचन, वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स। ओके, देखो कॉटन क्लोथ्स में अगर इफ कॉटन क्लोथ स्टार्ट बर्निंग तो वो बर्न हो जाते हैं, ठीक है, कॉटन बर्न हो जाता है। लेकिन नायलॉन के संग क्या है, ये क्रूड ऑयल से बना हुआ है, ठीक है, ये क्रूड ऑयल है। दैट इज द रीजन इफ समवन इज मेकिंग फूड इन द किचन एंड बाय चांस द फायर कैच इनटू द नायलॉन क्लोथ्स, देन व्हाट हैपन, ये क्लोथ्स क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं बॉडी से। जैसे कॉटन है, कॉटन क्या रुई है बेटा, ठीक है, वो जल के खत्म हो जाएगी। कॉटन क्लोथ्स किससे बना है, जो कॉटन को क्या करते हैं हम लोग, रुई बोलते हैं, ठीक है। सो वो क्या होती है, जल के खत्म हो जाती है, ऐश बन जाता है उसका, इफ इट कम इन द टच ऑफ ए फायर। लेकिन अगर नायलॉन के क्लोथ्स में अगर फायर लगती है तो ये क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, स्टिक विद द बॉडी, ये हमारे स्किन में चिपक जाते हैं। इसलिए नायलॉन कपड़े पहन के कभी भी बेटा हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी कुकिंग नहीं करनी चाहिए। कभी भी नायलॉन के कपड़े पहन के बेटा हमें कुकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, बॉडी में ही चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, एंड दैट इज द रीज़न इंजरी क्या है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इसकी वजह से इंजरी ज़्यादा हो जाती है। सो दैट इज द रीज़न नायलॉन के क्लोथ्स कैसे हैं, दीज आर द मैन मोल्ड क्लोथ्स बट दीज क्लोथ्स आर नॉट सेफ इफ यू आर वर्किंग नियर द फायर, देन दीज टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर नॉट सेफ। इस तरह के क्लोथ्स क्या है, सेफ नहीं है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, now we will discuss how these fibers are changed to fabrics। सो अब जो आपके फाइबर्स हैं, ठीक है, फाइबर्स में हमने किससे, कॉटन से भी आपको मिलता है, ठीक है, सिल्क भी है, और क्रूड ऑयल से भी आपने बनाया, क्रूड ऑयल से जो कि आपने क्या बनाया, नायलॉन, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे ये फाइबर, कॉटन, सिल्क और क्रूड ऑयल है, कैसे इनको फर्स्ट ऑफ ऑल किस फॉर्म में चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज ऑल दीज इनटू ए फॉर्म ऑफ ए थ्रेड, ठीक है, हम कॉटन के थ्रेड बनाते हैं, सिल्क के क्रूड ऑयल है, ठीक है, तो क्रूड ऑयल वो तो ऑयल है, ठीक है, तो उससे क्या है, तो हम लोग किस तरह इनसे थ्रेड तैयार करते हैं, और आफ्टर दैट इन थ्रेड को क्रिस क्रॉस करके सिंगल थ्रेड्स को हम लोग किस में चेंज करते हैं, इनको फैब्रिक में, फैब्रिक मीन्स क्लोथ फॉर्म में चेंज करते हैं। आप कभी भी कोई बेटा क्लोथ लोगे, अगर साइड से उसका थ्रेड निकालना चालू करोगे तो एक सिंगल थ्रेड निकलता है, तो इन्हीं थ्रेड्स को क्रिस क्रॉस करके क्लोथ बनता है, ठीक है, इन्हीं थ्रेड्स को क्रिस क्रॉस करके अरेंज करके क्या बनता है, क्लोथ बनता है। अब देखो फर्स्ट मेथड इज, ठीक है, देखो डायग्राम, इन डायग्राम इट इज शोन, सी द ऑब्जर्व द डायग्राम, आप सब डायग्राम ऑब्जर्व करो, सी दिस डायग्राम। सो हियर व्हाट इज शोन, यहाँ क्या शो किया है कि मटीरियल्स,
ठीक है, यहाँ ये शो किया है फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दिस। देखो, दिस इज अ कॉटन प्लांट, फ्रॉम दिस वी गेट द कॉटन, आफ्टर दैट दिस इज द सिल्क वर्म एंड फ्रॉम दिस वी गेट द सिल्क, एंड दिस इज द शिप, फ्रॉम द शिप वी गेट द वुल। ओके, एंड इन द सेकेंड स्टेप, see these are the plants. In the second step you will see what is this is what, this is cotton, this is silk, and this is wool. And in the third step you will see small kids wearing clothes made of a cotton, wool and silk. Okay, now you observe the second picture. Second picture of this is a charkha. Okay, this is a picture of a charkha, and after that spinning jenny. This is a picture of a spinning jenny. Now these threads, ये जो थ्रेड हैं इनको क्या है, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये सब थ्रेड्स हैं। ठीक है, जैसे आप लोग पतंग उड़ाते हो तो थ्रेड उसमें लगाते हो ना, लपेट लेते हो, इसी तरह थ्रेड से ये गोले बनाए गए हैं। ठीक है, अब नाउ द फर्स्ट वन इज द स्पिनिंग। The raw fiber, cotton, silk, wool और synthetic fiber are twisted to make a thread or yarn. इसी को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। This is known as spinning. The raw fibers, okay, raw fibers में क्या है, कॉटन, सिल्क, वुल, कॉटन है, सिल्क है, वुल है, और सिंथेटिक फाइबर्स जो कि मैन मेड है। सिंथेटिक फाइबर्स आर ट्विस्टेड to make thread और थ्रेड को yarn भी बोलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग। ओके, एंड अर्लियर द स्पिनिंग इज डन बाय द, स्पिनिंग का काम किसके करते थे, अर्लियर मीन्स ओल्ड टाइम। इन द ओल्ड टाइम वी डू स्पिनिंग ऑन द चरखा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, चरखा। ओके, तो दिस इज अ फोटो ऑफ द चरखा, ये देख लीजिए बेटा, दिस इज अ फोटो ऑफ द चरखा। ओके, इसमें व्हील लगी होती है और एट ए टाइम होता है ना, इसमें सिंगल वन थ्रेड बनता है। जो चरखा होता है ना बेटा, इसमें एट ए टाइम जब हम लोग करते हैं तो ये क्या बनाता है, सिंगल थ्रेड बनाता है। इज इट क्लियर, ये आपका क्या करता है, सिंगल थ्रेड बनता है इससे। ठीक है, चरखे से सिंगल थ्रेड, और उसी थ्रेड को लपेट के बड़े बड़े उसे किसी चीज़ पर लपेट लेते हैं। ठीक है, तो सिंगल थ्रेड यूज करते हैं। अब ये जो तुम्हारा स्पिनिंग जेनी है, स्पिनिंग जेनी, और स्पिनिंग जेनी है जो सेकंड पिक्चर आपकी इसमें दी है, देखो इसमें देयर इज ओनली वन। ठीक है, इसमें वन ही है ये। ठीक है, स्पिनिंग जेनी में आप लोग देखो तो ये बिल्कुल एक है। ठीक है बेटा, स्पिनिंग जेनी जो है आपकी, ये बिल्कुल सिंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंगल आपको दिया गया है।
और सिंगल व्हील है। और स्पिनिंग जेनी में क्या होता है, सिंगल व्हील होती है एंड एट ए टाइम आप 8 थ्रेड्स कर सकते हो। जैसे चरखा था, चरखे में आप एट ए टाइम एक बार जब व्हील आप घुमा रहे हो तो कितने थ्रेड्स उसमें से आप एट ए टाइम मेक कर रहे हो, ओनली 1 थ्रेड। ठीक है, एट ए टाइम आप एक ही थ्रेड को स्पिन कर करके उससे एक थ्रेड बना रहे हो, उसको स्पिन करके। लेकिन अब ये जो इसकी बात जो हमने की स्पिनिंग जेनी की, इसमें आप जो है स्टूडेंट्स, इसमें आप एक नहीं एट ए टाइम एक बार व्हील को टर्न करोगे तो कितने थ्रेड उसमें से निकलेंगे बन के, दैट इज द 8 थ्रेड। कितने थ्रेड एट ए टाइम निकलते हैं बेटा, दैट इज द 8 थ्रेड एट ए टाइम आ जाते हैं। इज इट क्लियर? सो हाउ मेनी थ्रेड्स कम आउट, सो नंबर ऑफ थ्रेड्स आर 8। ठीक है, नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने आ गए बेटा, नंबर ऑफ थ्रेड्स आर 8 थ्रेड्स कम आउट एट द सेम टाइम। तो इसी ये क्या है, स्पिनिंग जेनी बोलते हैं इसको। ठीक है, नाउ सोफिस्टिकेटेड मशीन्स इन द टेक्सटाइल फैक्ट्रीज डू देयर वर्क। अब उसके बाद क्या आ गया, sophisticated machines in textile factories sophisticated machine textile factory do their work। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस। पहले क्या था बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्क इज डन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्क इज डन बाई ए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्क इज डन बाई ए चरखा। ठीक है, इंडिया में से क्या बोलते थे, इन इंडिया में से बोलेंगे चरखा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस चरखा ओनली 1 थ्रेड कैन बी मेक एट ए टाइम। एट ए टाइम हम सिर्फ एक थ्रेड बना सकते थे। उसके बाद क्या आ गया बेटा, स्पिनिंग जेनी आ गया। यहाँ पे अगर 1 टाइम आप व्हील को रोटेट कर रहे हो, 1 टाइम इफ यू रोटेट द व्हील देन हाउ मेनी थ्रेड्स यू कैन मेक एट ए टाइम। एट ए टाइम कितने थ्रेड्स आप लोग बना सकते हो, 8 थ्रेड। ठीक है, 8 थ्रेड्स। यहाँ आप सिंगल थ्रेड था। ठीक है, सो पहले सिंगल थ्रेड बनता था एट ए टाइम, फिर स्पिनिंग जेनी आई तो 8 थ्रेड्स आ गया। अब सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आ गई जो टेक्सटाइल, जो बोला है टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज जो हैं, अब देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वो उन इंडस्ट्रीज को बोलते हैं जहाँ पे क्या वो होता है, क्लोथ बनाते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बेटा उन इंडस्ट्रीज को बोला जाता है जहाँ पे क्या फॉर्म होता है, क्लोथ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इतनी ज़्यादा, अब देखो इतनी मशीनें आ गई हैं कि ये वर्क बहुत जल्दी होने लगा है, क्योंकि जितना जल्दी थ्रेड बनेंगे उतना जल्दी क्लोथ बनेगा। तो ओल्ड टाइम में ये बड़ी स्लो प्रोसेस थी। आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम स्पिनिंग जेनी से करने लगे, 8 थ्रेड्स कम आउट एट द 1 टर्न ऑफ द व्हील। अब ये सोफिस्टिकेटेड मशीनें आ गई हैं जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में, जो इस काम को बहुत फास्ट कर देंगी, बहुत फास्ट कर देती हैं इस काम को। इज इट क्लियर? तो नाउ महात्मा गांधी इंकरेज द यूज ऑफ हैंड वोवन फैब्रिक खादी। अब जब महात्मा गांधी थे, एट दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट एट द टाइम व्हेन इंडिया इज नॉट, व्हेन इंडिया नॉट गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ये उस समय की बात कर रहे हैं जब इंडिया को ब्रिटिश रूल से फ्रीडम नहीं मिली थी। ठीक है, सो एट दैट टाइम गांधी जी इनकरेज द पीपल टू वेयर विच टाइप ऑफ क्लोथ, टू वेयर खादी क्लोथ। ठीक है, हाथ से बने हुए, ये मशीन वाले नहीं थे, हाथ से इन क्लोथ को तैयार करते थे। ठीक है, तो उस समय गांधी जी ने लोगों को इनकरेज किया था कि वो अपने देश के कपड़ों को अपनाएं। ठीक है, खादी क्लोथ वेयर करें। ठीक है, उसके बाद है, अब देखो वेविंग इन द सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो तुम्हारा स्पिनिंग है, इस स्टेप में थ्रेड तैयार हो गए, क्योंकि मैंने आपको बोला ना यही थ्रेड को आपस में क्रिस क्रॉस करके क्लोथ बनता है। तो फर्स्ट स्टेप है द स्पिनिंग।
तो स्पिनिंग के 3 मेथड से सबसे ओल्डेस्ट मेथड जो इंडिया में था वो स्पिनिंग चरखा मेथड था। एक बार व्हील टर्न लेती थी तो 1 थ्रेड निकलता था, फिर जब स्पिनिंग जेनी आ गई तो वन टर्न ऑफ ए व्हील 8 थ्रेड्स कम आउट। नाउ सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आ गई तो ये काम और भी फास्ट होने लगा। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है वी आर द इंडस्ट्री इन विच क्लोथ्स आर फॉर्म, वो इंडस्ट्री जहाँ पे क्लोथ फॉर्म होता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप देखते हैं बेटा, वेविंग। ठीक है, वेविंग क्या है? ठीक है, नाउ वेविंग इज द व्हाट इज दिस? दिस इज द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप फॉर मेकिंग द क्लोथ। ठीक है, अब वेविंग क्या है? सेकंड स्टेप है फॉर मेकिंग द क्लोथ। ओके, दिस इज द सेकंड स्टेप फॉर मेकिंग द क्लोथ एंड दिस इज नोन एज वेविंग। ओके, अब सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया? यार्न बोलो या थ्रेड बोलो, बात एक ही है। तो स्पिनिंग मेथड से थ्रेड तैयार हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? अब is made into fabric by weaving on big machines called looms। अब देखो जो वेविंग होती है मतलब कपड़े को बनाना। ठीक है, अब कपड़े को जो बनाने का काम है आज के प्रेजेंट टाइम्स में बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं। ठीक है, जो ये वर्क करती हैं बिग मशीन्स, और इनको क्या बोलते हैं? लूम्स बोलते हैं। ठीक है, ये मशीन, क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम जो क्लोथ तैयार हो रहा है वो बेटा मशीन्स बना रही है। और ओल्ड टाइम में यही काम कौन करते थे? ह्यूमन बींग्स करते थे। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो मशीन्स आ गई हैं इन्होंने, इसीलिए अब ये सब काम बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। तो देखिए, द yarn और thread, the yarn or thread is made into fabric ठीक है, अब फर्स्ट मेथड स्पिनिंग मेथड में थ्रेड बनाया, अब सेकंड मेथड में इस थ्रेड से हम लोग क्या बना रहे हैं? क्लोथ बना रहे हैं। तो द yarn और थ्रेड इज मेड इनटू फैब्रिक बाय वेविंग। अब इससे किसके करते हैं? बिग मशीन्स, बाय वेविंग ऑन बिग मशीन्स called looms। ठीक है, इन बिग मशीन्स को क्या बोला? लूम्स बोला। अब व्हाट दे डू? दे क्रिस क्रॉस द थ्रेड, ये थ्रेड को क्रिस क्रॉस करते हैं टू फॉर्म ए फैब्रिक। ठीक है, सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस मशीन्स? व्हाट इज द रोल ऑफ द लूम्स? लूम्स क्या करते हैं? ये करते हैं थ्रेड को क्या करते हैं बेटा? क्रिस क्रॉस करते हैं। ठीक है, क्रिस क्रॉस the long threads crisscross the long threads to weave them into a fabric और क्लोथ। अब देखो, ये जो बेटा क्लोथ बनाने का काम है ना, ये एक तो मशीन्स भी करती हैं,
और इसे बाई हैंड भी लोग भी बनाते हैं हैंडलूम से, ठीक है। सो द वेवर्स, वेवर्स वो होते हैं जो कपड़ा बुनकर होते हैं, कपड़ा बनाने वाले, ठीक है, जो कपड़े को बनाने का, क्लोथ बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो मैनी वेवर्स वेव्स द थ्रेड ऑन हैंडलूम्स बाई हैंड, ठीक है। तो बाई हैंड भी ये वर्क कर किया जाता है और ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, वेवर्स बोलते हैं, ठीक है। सो मशीन से भी किया जाता है। सो वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।